Good morning, everyone. In the last lecture, we have completed with the journal entries in the books of transferor and in the books of transferee, vendor company and purchasing company. In the before that, those lectures, we have also done the introduction lecture on amalgamation. Today, we will start with the sums in amalgamation. Let us take small sums today. Let us do the sums based on purchase consideration today. As I had explained you, purchase consideration is very important in amalgamation, and you all also are aware because you have this chapter in your SYBCom. If you go wrong in this purchase consideration, all the sum, like the further sums, everything will get wrong. So you should be very alert when you solve this purchase consideration. So today what we will do in today's lecture, we will do few sums on purchase consideration. So now let us start the first sum. Given below are the extracts from the balance sheet of Y Limited as on 31st March 2019. Particulars and the amount is rupees in lakhs. Equity share capital of rupees 10 each. 10 lakh means 1 lakh into 10 is 10 lakhs. So 1 lakh शेयर है हमारे पास 10 lakhs का. फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है 8% of rupees 100 each 2 lakhs. Then we have reserves and surplus 3 lakhs, 12% debentures of rupees 100 each 1 lakh. Then we have current liabilities 2,20,000. We have non-current asset of 12,80,000, and we have current asset of rupees 5,40,000. X Limited absorbs Y Limited as on that date on the following terms. मतलब yes, this sum is an example of absorption wherein one company takes over the another company. So X Limited ने absorb किया Y Limited को, X Limited ने take over किया Y Limited को. So 12% debentures of Y Limited are to be discharged by X Limited by issuing such number of its 15% debentures of rupees 100 each, so as to maintain the same amount of interest. In this what they have told is कि हमें जो हमारे पास जो 12% डिबेंचर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स ऐसा बोलते हैं कि हमें जब आप वाई लिमिटेड में डिबेंचर्स दोगे तो हमें 15% डिबेंचर्स चाहिए, सॉरी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर्स चाहिए. लेकिन कंपनी ने भी क्या चीज ध्यान में रखा, दैट एक्स लिमिटेड उनको 15% डिबेंचर 15% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स तो देंगे, लेकिन the amount of interest will remain the same. मतलब 12% डिबेंचर में अगर 1 लाख के डिबेंचर में 12,000 आ रहा है, अगर 12,000 का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो जब 15% डिबेंचर्स देंगे तो वहां पे भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 12,000. तो वैसा दे हैव डिस्चार्ज द डिबेंचर्स. देन द सेकेंड वन व्हाट वी हैव इज the issue of such an amount of fully paid 9% preference shares in X Limited at 125% as is sufficient to discharge 8%. हमारे पास 8% डिबेंचर्स है, तो वो जो 8% डिबेंचर्स हैं उनको वाई लिमिटेड में क्या चाहिए, उनको जो 8% डिबेंचर्स है वाई लिमिटेड में वो 20% प्रीमियम में उनको डिस्चार्ज करना है. तो जो नया कंपनी है एक्स लिमिटेड विच इज द परचेसिंग कंपनी, which is the Y Limited preference shareholders are demanding कि हमें तुम्हारे X Limited में 9% preference shares चाहिए, and
नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे होना चाहिए कि मतलब हमें कितना मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 लाख है तो हमें जब तुम लोग डिस्चार्ज करोगे तो 20% प्रीमियम में तुम लोग को देना है, 20% प्रीमियम में देना है। एंड हाउ मच, 125%। ये भी हम देखेंगे बिकॉज देखो परचेज कंसिडरेशन हैज टू बी गिवन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, and the owners of the company are equity shareholders and preference shareholders। तो पीसी में इनको क्या मिला वही आएगा। फिर नेक्स्ट, द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल रिसीव, equity shareholders of Y Limited will receive the requisite number of equity shares, will receive the requisite number of equity shares of X Limited. So the equity shareholders of Y Limited will receive, the equity shareholders of Y Limited will receive the requisite number of equity shares of X Limited. The equity shares of X Limited are to be of the nominal value of 10 each, credited as rupees 8 paid up and valued at rupees 15 per share। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि the equity shareholders of Y Limited will receive the requisite number of इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब जितना इक्विटी शेयर्स वाई लिमिटेड में है उतना ही इक्विटी शेयर्स एक्स लिमिटेड में भी रहेगा। और इनको क्या मिलने वाला है, 15 रुपीज। इनको जो शेयर्स मिलने वाला है दैट विल बी ऑफ 15 रुपीज। इनको वैल्यूड एट, तो 10 रुपीज का जो शेयर है वो एक्चुअली 8 पेड अप था, अब उनको कितना मिलने वाला है, उनको 15 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मिलने वाला है। द ट्रांसफरी कंपनी इज द परचेसिंग कंपनी, न्यू कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी shall pay the cost of absorption which amounts to 1 lakh, show the calculation and discharge of purchase consideration। तो हमें तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन ही सिर्फ बताना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द परचेज कंसिडरेशन। सो कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, so here particulars and amount, particulars, amount। तो यहाँ पे लेटर्स सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स को 8% प्रेफरेंस शेयर के बदले में 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाला है। What they are going to get, 9% preference shares in X company, X Limited में 8% के बदले में 9% मिलने वाला है। या यहाँ पे बोलते हैं जो 8% प्रेफरेंस शेयर है इन वाई लिमिटेड वो 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज करना है। तो जो हमारे पास 2 लाख रुपीस है, जब 9% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे तो उनको 2 लाख के बदले में 20% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, 20% एक्स्ट्रा। सो हाउ मच इट इज, वर्किंग नोट में जाते हैं, वर्किंग नोट में 2 लाख प्लस 20% इज इक्वल टू हाउ मच, 2,40,000 बराबर इज इक्वल टू 2,40,000। तो हम लोग कितना देने वाले, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, उनको 20% एक्स्ट्रा मिलने वाला है एक्स लिमिटेड के तरफ से, तो वो 2,40,000 होता है। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, सी इधर 9%
जो है वो 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट 125%, तो 125% में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसको मतलब एक शेयर जो है 125 का है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा देखो इसमें, जो 2,40,000 है, इसमें 125 रुपीज का शेयर देने वाले हैं। तो जरा करो, 2,40,000 डिवाइड बाई 125, हाउ मच इज इट कमिंग? 1920 प्रेफरेंस शेयर्स मिला ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 1920। तो ये प्रेफरेंस शेयर कितना रुपीस में? एट रुपीज 125 ईच। प्रेफरेंस शेयर जो 100 का था, अब 125 रुपीस मिलने वाला है। तो करो इधर, 1920 into 125, which is equal to how much? 2,40,000 मिल रहा है, 2,40,000। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स था, अब उनको 20% प्रीमियम देने वाले हैं। जब नया प्रेफरेंस, जो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, अब वो लोग बोलते हैं उनको न्यू कंपनी में 8% के बदले में 9% प्रेफरेंस शेयर चाहिए, और उनको 20% प्रीमियम में चाहिए, और एक शेयर उनको 125 में चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 20 किया, तो हमें 2,40,000 मिला, और उनको शेयर्स 125 में चाहिए, तो डिवाइड बाय 125 किया, तो हमें मिला नंबर ऑफ शेयर 1920 होगा। पहले नंबर ऑफ शेयर 2000 था, अभी नंबर ऑफ शेयर 1920 हो गया। पहले 2000 था, कैसे पता चला? 2 लाख डिवाइड बाय 100 करो, 2 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब इट कम्स टू 2000। पहले 2000 शेयर्स था, अभी 1920 शेयर्स है। बट जहाँ पे पहले 100 रुपीज का एक शेयर था, एक्स लिमिटेड में 125 का एक शेयर है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो गया। सो अभी जो पीसी है वो दो लोगों को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को और इक्विटी शेयर्स को। नाउ लेट अस डू फॉर द इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को कितना है, जितना पहले शेयर था उतना ही अभी भी शेयर मिलने वाला है। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल रिसीव द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो जहां पे पहले पहले कितना शेयर था, 10 लाख डिवाइड बाई 10 करो, 10 लाख डिवाइड बाई 10, you will get 1 lakh. 10 lakh divided by 10 is 1 lakh. Equity shares of rupees, how much rupees बोला है? एक्स लिमिटेड में देखो, द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर टू बी ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू 10 ईच, क्रेडिटेड एट ₹8। तो यहाँ पे क्या होगा, जो शेयर्स है नंबर सेम रहेगा, लेकिन क्या बोला है, 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज में देने वाले हैं, एंड वैल्यूड एट ₹15 पर शेयर। तो यहाँ पे जो 1 लाख शेयर है वो कितने में वैल्यू करने वाले, देते वक्त कैसे देने वाले हैं, 15 रुपीज के हिसाब से। दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम 15 लाख, दिस विल बिकम 15 लाख। तो इक्विटी शेयर अपना जो पीसी है वो तो सिर्फ दो ही लोगों को मिलता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो दोनों को ऐड करो, यू विल गेट द टोटल परचेज कंसीडरेशन, टोटल परचेज कंसीडरेशन। So the total purchase consideration is 17,40,000. With this sum is done.
Now we will do the next question. Let us do the next question now. So A Limited took over B Limited. So again this is a question of absorption. एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया. अगेन एग्जाम्पल ऑफ absorption. So A Limited took over B Limited and agreed to pay consideration as follows. And agreed to pay consideration as follows. तो यहाँ पे to issue 5 equity shares of ₹10 each for every 7 equity shares held at ₹35 each. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू इशू 5 इक्विटी शेयर्स, मतलब कंपनी जो है ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है. तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया तो बी लिमिटेड बंद होगा. तो बी लिमिटेड बिकम्स अ ट्रांसफरर कंपनी एंड ए लिमिटेड इज अ ट्रांसफरी कंपनी. तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को पीसी पे करना है. समझ में आया? ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड. सो ए लिमिटेड इज द ट्रांसफरी कंपनी, परचेसिंग कंपनी, एंड बी लिमिटेड इज द वेंडर कंपनी और द ट्रांसफरर कंपनी. सो यहाँ पे ए लिमिटेड हैज टू पे कंसिडरेशन टू बी लिमिटेड. तो क्या ए लिमिटेड देगा? ए लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर्स. ए लिमिटेड क्या करेगा? 5 इक्विटी शेयर्स इशू करेगा ₹10 का for every 7 equity shares. For every 7 equity shares. मतलब बी लिमिटेड में अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर है तो आपको ए लिमिटेड का 5 इक्विटी शेयर मिलेगा. अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर है इन बी लिमिटेड तो आपको 5 इक्विटी शेयर मिलेगा इन ए लिमिटेड. ये समझ में आया? तो इशू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड. तो आपके पास 7 इक्विटी शेयर्स है तो आपको 5 इक्विटी शेयर मिलेगा इन ए लिमिटेड. एंड आपको कितने प्राइस में मिलेगा? ₹35 में. आपको कितने प्राइस में मिलेगा? ₹35 में. ₹10 का शेयर आपको ₹35 में, मतलब ₹25 का इट विल बी प्रीमियम. एंड एक और चीज आपको मिलेगा, आपको ₹10 पर शेयर कैश में भी मिलेगा. मतलब आपको 7 इक्विटी शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर मिलेगा और आपको ₹10 पर शेयर कैश में भी मिलेगा. आपके पास एक शेयर है तो आपको ₹10 मिलेगा. आपके पास 10 शेयर है तो 10 into 10, हर एक शेयर के लिए ₹10 कैश में मिलेगा. For every share you will get ₹10 in cash. Calculate consideration for amalgamation assuming that the equity shares are of ₹10 each. इक्विटी शेयर कितने का है? ₹10 का है. और ये ऊपर भी दिया हुआ है that equity share is of ₹10 and total number of equity shares is 1 lakh in B limited. So B limited में total number of shares कितना है? 1 लाख है. और every 7 shares के लिए 5 इक्विटी शेयर मिलेगा नए कंपनी में. तो हमें क्या करना है? हमें अगेन कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन करना है फॉर अमालगमेशन. बोला ना कैलकुलेट कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन. सो कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन. सो क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. So we will insert 2 columns. So here what we will say, particulars and rupees. So सबसे पहले हमें किसको देना है? इक्विटी शेयर्स को देना है.
एक यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम कंसिडरेशन शायद सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देंगे। तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देना है, पहले तो इन इक्विटी शेयर्स, पहले तो हम क्या दे रहे हैं, हम दो चीज दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में दे रहे हैं, कैश में। तो इन इक्विटी शेयर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गिव, क्या यहाँ पे वर्किंग नोट में देखते हैं, वर्किंग नोट में लेटर सी, हम क्या करने वाले हैं, कितना मिलने वाला है, आपके पास 7 शेयर्स है, तो आपको बदले में 5 शेयर्स मिलेगा, 5 इक्विटी शेयर्स मिलेगा इन ए लिमिटेड विच टुक ओवर बी लिमिटेड। अगर आपके पास हेल्ड, आपके पास 5 इक्विटी शेयर्स है, 5 इक्विटी, सॉरी आपके पास 7 इक्विटी शेयर्स है इन बी लिमिटेड, तो आपको 5 इक्विटी शेयर्स मिलेगा इन ए लिमिटेड। अगर आपके पास 7 इक्विटी शेयर्स है तो आपको बदले में 5 इक्विटी शेयर्स मिलेगा, और टोटल इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड में है 1 लाख, टोटल इक्विटी शेयर बी लिमिटेड में है 1 लाख। सो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, do the cross multiplication, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम वन मिनट, कंट्रोल Z, तो व्हाट वी विल डू, विल जस्ट, सॉरी 1 minute, I want to ignore and then ignore. Okay. So here cross multiply करो, 1 lakh into 5 divide by 7 into 5 divide by 7. How much you are getting? How much you are getting? कितना शेयर्स मिल रहा है? डेसिमल में आ रहा है, यू गेटिंग द आंसर इन डेसिमल, 1 lakh into 5 divide by 7, we are getting 71428, 71428.57, दो डेसिमल ले रहे तो 57 बराबर, वी आर गेटिंग दिस अमाउंट 71,428 into 71,428.57। तो यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में आता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, whenever we are getting the answer in fraction, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 71,428.57 है ना, 0.57, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल बाद में लेंगे। डेसिमल देखो कभी भी है ना, जब शेयर्स मिलते वक्त, व्हेनेवर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, अगर आपको डेसिमल आए, व्हेनेवर, यहाँ पे देखो अगर हमें प्रॉपर आंसर आता तो कोई टेंशन ही नहीं था, 5 इक्विटी शेयर के लिए 7, जब भी हम बोनस शेयर सब करते हैं तो हमें प्रॉपर आंसर आता है, हमें डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता, डेसिमल में आंसर नहीं आता। तो ये सब में हमें डेसिमल में आंसर आया है, और जब भी डेसिमल में आंसर आएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो पॉइंट में आंसर आ रहे हैं ना, वो हम कैश में लेंगे, बिकॉज शेयर्स हम डेसिमल में नहीं दे सकते, समझ में आया, हम शेयर्स डेसिमल में पॉइंट में नहीं दे सकते, तो जो पॉइंट 0.57 है ना, वो हम कैश में पे करेंगे। 0.57 जो डेसिमल है ना, 0.57 जो डेसिमल है ना, वो हम कैश में पे करेंगे, एंड जो डेसिमल के आगे का नंबर प्रॉपर नंबर है,
उसको क्या शेयर्स में देंगे, तो कितने का शेयर है, 35 का शेयर है, तो कितना शेयर्स हो जाएगा, शेयर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, 71428 7171428 into 35, it is coming to 24,99,980 बराबर, यही आंसर आ रहा है। अब जो बाकी का इन कैश जो डेसिमल है ना, जो डेसिमल आया है 0.57 का, या 0.57 बोलो या 0.57 बोलो, एक ही बात है। वो डेसिमल हम कैश में देंगे, वो डेसिमल जो है वो हम कैश में देंगे। तो मल्टीप्लाई करो 0.57 इंटू 35 कितना होता है, इट इज कमिंग 19.95, तो उसको मैं 20 ले सकती हूँ, 19.95 उसको मैं 19.9 इज 20, 19.9 इज 20 ना 20, तो उसको मैंने 20 लिया। और इसके बाद इन कैश अलग से है, इन कैश में भी बोला है, देखो टू पे, पहले तो इक्विटी शेयर देना था ये रेशो में, वो हमने किया। उसके बाद पीसी में और एक चीज है, ₹10 इन कैश, ₹10 पर शेयर इन कैश। तो इन कैश में जितने शेयर्स हैं हमारे पास, बी लिमिटेड में 1 लाख शेयर है, सबको 10 रुपीज का कैश भी देना है, 10 रुपीज का कैश भी देना है। तो वो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज का कैश देंगे तो वो 10 लाख हो जाएगा, इट विल बी 10 लाख, इट विल बी 10 लाख। सो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 24,99,980 प्लस 20 प्लस 10 लाख कितना हो जाएगा, इज इट कमिंग टू 35 lakhs, is it coming to 35 lakhs? मतलब we got the total consideration, total purchase consideration, it is 35 lakhs. With this sum is also done. A Limited, now let us do the next sum. A Limited took over B Limited. Again A Limited ने take over किया B Limited को, again absorption, and agreed to pay consideration as follows, and agreed to pay consideration as follows, to issue necessary equity shares of A Limited. Market value of equity shares of A Limited is ₹35 per share, and that of B Limited is 25 per share. तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दोनों कंपनी का मार्केट वैल्यू दिया, यहाँ पे दोनों कंपनी का मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्वैप करना है इसको ना, जो हमने अभी रेशो बनाया ना 7 शेयर के बदले में 5 शेयर, इसको बोलते हैं स्वैप रेशो, इसको क्या बोलते हैं, स्वैप रेशो। स्वैप क्या कर रही है कंपनी, एक दूसरे का शेयर को स्वैप कर रही है, एक्सचेंज कर रही है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्वैपिंग ऑफ शेयर्स और स्वैप रेशो। मीन्स फॉर 7 शेयर्स इन बी लिमिटेड, they are accepting 5 shares in A Limited, so it is also known as swap ratio। और अगर उसमें कोई फ्रैक्शन रहेगा, डेसिमल रहेगा, तो वो हम कैश में एडजस्ट करते हैं, वो हम किस में एडजस्ट करते हैं, हम कैश में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन, व्हाट, ₹10 पे होगा कैश में, ₹10 पे होगा कैश में, फॉर एवरी शेयर 10 रुपीज कैश में मिलेगा, और बाकी का दे हैव गिवन स्वैप करना है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज टेकिंग ओवर बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड जो है अपने शेयर के बदले में, अपने शेयर के बदले में क्या लेगा, ए लिमिटेड का शेयर लेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्वैप करना है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड है 2 लाख। कैलकुलेट कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन। सो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, कंसिडरेशन
calculation of consideration for amalgamation. So let us start. So let us adjust the columns. Particulars and rupees. Particulars and rupees. सो यहाँ पे रसम इज इन फ्रंट ऑफ अस. तो यहाँ पे हम क्या देने वाले, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. तो हम किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में कितना मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम कितने शेयर्स है, देर आर 2 लाख शेयर्स, बराबर देर आर 2 लाख शेयर्स. तो यहाँ पे जरा वर्किंग नोट में ये करते हैं. वर्किंग नोट में कितना मिल रहा है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. कौन किसका कंपनी टेक ओवर हो रहा है, ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड का शेयर का वैल्यू कितना है, 25. ए लिमिटेड के शेयर का वैल्यू कितना है, 35. करेक्ट. ए लिमिटेड के शेयर का वैल्यू है 25. बी लिमिटेड के शेयर का वैल्यू, सॉरी, ए लिमिटेड के शेयर का वैल्यू है 35 एंड बी लिमिटेड का शेयर का वैल्यू है 25. दे दिया, देखो मार्केट वैल्यू, ए लिमिटेड 35, बी लिमिटेड 25. तो अभी हमें किसका शेयर्स पता है, हमें बी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड पता है. नंबर ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड इज 2 लाख. 2 लाख है. नंबर ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड इज 2 lakh. Do a cross multiplication. 2 lakh into 35 divide by 25. कितना आंसर आ रहा है, so how much are you getting? यहाँ पे 1 मिनट. हाँ, तो बदले में यहाँ पे 2 लाख. चलिए मुझे 1 मिनट. हाँ, see there, I'm very sorry everyone, there is a swap ratio formula which we have to apply here. स्वैप रेशो का फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है. जब भी ऐसे मार्केट वैल्यू दिया रहता है ना, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. तो उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ one share of transferor company, value of one share of transferor company divide by transferor company divide by value of one share of transferee company.
अभी मुझे बताओ, ये मुझे वहां ले, 1 मिनट। तो ये ऐसे नहीं, इसको ये ऐसे ही, बिकॉज ये ना इधर नहीं जाएगा, तो अपॉन करेंगे तो तुम लोग को क्लियर हो रहा है ये फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी किसको बोलते हैं, मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, वेंडर कंपनी को। और ट्रांसफरी कंपनी किसको बोलते हैं, ट्रांसफरर कंपनी किस, ट्रांसफरी कंपनी किसको बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं परचेसिंग कंपनी को। नाउ टेल मी हियर, what is the value of one share of ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन है, जिसका कंपनी बंद हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, दैट इज बी लिमिटेड ना। बी लिमिटेड का मार्केट वैल्यू कितना है, बी लिमिटेड का मार्केट वैल्यू है 25, और विच इज द परचेसिंग कंपनी, इट इज ए लिमिटेड, उसका मार्केट वैल्यू है 35। तो हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, स्वैप रेशो मतलब 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 35, तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इसमें कितना आ रहा है, ऐसे करने पे कितना नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है, ऐसे करने पे हमें कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ रहा है, पूरा नंबर एकदम रिपीट हो रहा है ना, 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 35। तो आंसर ये यहाँ पे ऐसा है 142857, ये नंबर है। और यहाँ पे मैं नीचे लिख, यहाँ पे और पूरा नंबर अगर देखे तो सेम नंबर फिर से आ रहा है, सेम नंबर इट इज 142857.142857। डेसिमल के बाद भी सेम नंबर आ रहा है, डेसिमल के बाद भी जो नंबर है वो सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होता है वो हम कैश में देते हैं, जो डेसिमल होता है पॉइंट, उतना हम कैश में देते हैं, और जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो इक्विटी शेयर में देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको मैं कट कर देती हूँ, ये डेसिमल जो है, सॉरी सॉरी, ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल को हम इन कैश में बताएंगे, इन कैश इक्वल टू ये डेसिमल 0 पॉइंट। तो कितना, कौन खरीद रहा है ये कंपनी को, यहाँ पे जब हमने स्वैप रेशो किया तो हमें आंसर आ रहा है 142,857.142857, ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे किसको, ये कंपनी को कौन खरीद रहा है, बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड जब भी इतना शेयर किसको देना पड़ेगा, बी लिमिटेड को पे करना पड़ेगा ना एज कंसिडरेशन। तो बी लिमिटेड का शेयर्स का मार्केट वैल्यू है 35, बी लिमिटेड के शेयर्स का मार्केट वैल्यू है 35, तो इक्विटी शेयर्स में इतना देना पड़ेगा 142,857, 1,42,857 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 49,99,995, 49,99,995। और जो डेसिमल आया है वो डेसिमल में हम कैश देंगे, डेसिमल में हम क्या देंगे, कैश देंगे। तो डेसिमल में देखो
कितना आ रहा है 142857 इंटू 35, तो 4.9999 ऐसे आ रहा है 4.999, मतलब इट इज 5 रुपीज. इट इज हाउ मच 4.99 ना. 4.99 इज 5. 4.99 इज 5. सो ये जो फ्रैक्शन है ना डेसिमल, वो डेसिमल में हम शेयर्स नहीं दे सकते, तो वो डेसिमल में हम कैश दे देते. समझ में आया? जो हम लोग का जो नंबर है उतना कैश दे दिया, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना वो पॉइंट में हम कैश देंगे. और ये क्वेश्चन में और भी दिया है, कैश में कितना पर शेयर कितना कैश देना है, टू पे ₹10 पर शेयर इन कैश, तो 10 रुपीज देना है. और नंबर ऑफ शेयर से 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर से 2 लाख, तो कितना हो जाएगा कैश में, मल्टीप्लाई करो 20 लाख. तो टोटल करो कितना होएगा 49,99,995 प्लस 5 प्लस 20 lakhs which is equal to 70 lakhs which is equal to. यस, हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लेंगे ना तो भी हमें 0.5 ही मिलेगा, फिर भी हमें 5 रुपया ही मिलेगा. देखो 0.14 into 35, that is also 4.9 is 5. 2 डिजिट लेंगे तो भी चलेगा, 2 डिजिट लोगे तो भी तुमको आंसर जो है वो कैश का 5 रुपया ही मिलने वाला है. अगर हम जितना ज्यादा डेसिमल लेते हैं हमें उतना परफेक्ट आंसर आता है. आंसर तो तुमको फिर भी 5 ही मिलेगा. तुम 2 डिजिट लोगे तो भी 5 मिलेगा, तुम सारा डिजिट लोगे तो भी तुमको 35 से मल्टीप्लाई करने पे 5 ही मिलेगा. तो दैट इज अपॉन यू, तुमको पूरा लेना है ये 2 डिजिट लेना है, अप टू यू. मैंने क्यों पूरा लिया पता है, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक नंबर. 142,857.142,857 मतलब वेरी यूनिक नंबर है. पॉइंट के बाद भी सेम नंबर है, तो इसलिए मैंने पूरा लिया. आप 2 डिजिट लोगे, 3 डिजिट लोगे, 4 डिजिट लोगे, कितना भी चलेगा, पर जितना ज्यादा डिजिट लोगे उतना परफेक्ट आंसर आएगा. तो यहाँ पे एनी कंफ्यूजन, यहाँ पे हमने स्वैप रेशियो का फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया विद द मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, बिकॉज कंसिडरेशन कौन पे करेगा, ट्रांसफरी कंपनी कंसिडरेशन पे करेगा. तो हमने अकॉर्डिंगली ट्रांसफरी कंपनी के मार्केट वैल्यू से जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा था उसको मल्टीप्लाई किया, और जो फ्रैक्शन आ रहा है डेसिमल आ रहा है उसमें उतना कैश दे दिया. ऊपर का जो पैसा जो शेयर में नहीं दे सकते वो हमने कैश में दे दिया. तो इसके साथ दिस सम इज ऑल्सो डन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.